Hello everyone, welcome to Maneuver. So today we have this Gautam. He's a Law City 5-year aspirant. So today we will take the podcast and we'll try to understand what was his strategy for the preparation, and his marks is 119. So that is a very great score. So we will try to understand everything. It means what was his preparation strategy and how and about his background. So hi Udis. So Hello, just sir. tell me, about yourself. It means about your educational background as well as your preparation strategy. So first tell me about your educational background and about yourself. Yes. So, hello, sir. Hello, family. My name is Udish Gautam. I basically belong from Lalitpur, Bundelkhand region of Uttar Pradesh. And I did my class 10 and 12 basic qualification education from Uttar Pradesh, Lalitpur only. I did my class 10 from St. Dominic Saviour English Medium School. And I scored 91% in my class 10. And I did my 12 from PCM background from Sanskar Valley Academy, Lalitpur only. And scored 94% in my class 12. Oh, that's great. And your score is also 119. So that is also a very good score. So congratulations for this score. So thank you, sir. जब first time score देखा तो how you feel? Sir, it was a very great moment for me. I was very glad at that time. I shocked and my family also shocked that you scored that much marks. It is very glad moment for us, for my family. As per exams, what was your expectation? It means expectation था कितना marks आएंगे या फिर you are expecting more than it? Sir, I was expecting more than it, but some people told me that there will be normalization in the score. That's why I was thinking of scoring 115 plus and 120 plus. On that day, when I gave the examination, I was thinking that my score will be something around 125 plus or 130. But when the result came and my score was 119, I was pretty surprised. But it was good because the highest marks also was 129. So are you happy or not? Yes, sir. I am pretty happy. So you are happy with your marks? Yes. Okay. So when you started your preparation basically? For sir, I started my yes, sir. I started my preparation just after my 12th when I gave my boards examination. So basically, I started for CLAT, and I gave CLAT in December and ALIT as well in December 2022. But that in that examination, I wasn't able to score that much amount of marks so that I can clear the NLUs. But I was hoping that I will clear the examination which are just equal to the CLAT. That's why I was hoping for MHCET, Symbiosis Law Admission test. Okay, so after CLAT, then you set your priorities for the Law City 5 years. Yes, sir. MHCET was my first preference. Okay, so it was your first preference. Yes. So CLAT was your second preference. Yes. Okay, fine. So why you choose the law as a career? Sir, as I pre-decided in my class 9th and 10th only that I was having a very good debating skills, speaking skills. I was a very good avid reader and debater. That's why I decided in my class 9th, 10th only that I will be going to pursue this field of law. Okay, fine. Yes. So it was the reasons why you choose your career as a law. And now your score is also good. So whichever college you are targeting, hope so मिल भी जाएगा, कोई problem नहीं है. Yes. Okay, and now come to the preparation part. So as we know, in this exam there is a 5 section. So एक तो legal है, English है, mathematics है, और reasoning है, और GK है. Okay, so which section is difficult for you and which one is easy for you, and what was your preparation strategy basically? Sir, when I used to give mocks of MHCET, I was scoring less marks in GK section because of the static part of GK. I was scoring good in analytical reasoning, mathematics, legal reasoning, but was getting low marks in GK and English. But when I started watching videos of Maneuver and started giving test and mock series of Maneuver, then the score of my GK section was drastically improved. Oh, that's great. Yes. The video lectures which you was watching, so it was pre-recorded or live? Sir, I used to watch sometimes pre-recorded or sometimes live video which are on YouTube channel of Maneuver. Okay. It means these all the content was very helpful for your preparation. Yes, sir. I also read that Maneuver PDF for GK section.
The 5-10 questions were directly from that PDF, sir. Exactly, I बहुत was सारे very questions surprised हैं, on that very definitely. moment when I gave that exam. That 5 questions I have practiced very hardly. ओके, दैट्स ग्रेट. एंड मोस्टली स्टूडेंट्स के मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो कि एज अ फैकल्टी वो हमसे पूछते हैं कि मतलब किस वे में सारे सेक्शन को अपीयर करना चाहिए. इट मींस कौन से सेक्शन को पहले अपीयर करना चाहिए, कौन से सेक्शन को बाद में करना चाहिए. तो एज पर माय सजेशन तो वो मैं देता हूँ. बाय द वे, फाइनली टुडे यू आर हियर, आपने काफी अच्छा स्कोर भी किया है. तो एज पर यू, स्टूडेंट के कौन से सेक्शन को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर व्हाटएवर प्रायोरिटाइज करके अटेम्प्ट करना चाहिए कि जो कि हेल्पफुल हो काफी बेटर स्कोर करने में, और एग्जाम्स का जो हॉल होता है वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा मेंटल प्रेशर ना क्रिएट हो. So first of all, I would like to say to that very person who is going to attempt this MHCET paper, sir, पहली चीज आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि which is your best section. Okay. You should attempt that section very firstly. अगर आपका जो सेक्शन बेस्ट है, जैसे मेरा एनालिटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स मेरा बेस्ट था, मतलब मुझे लगता था कि बाकी पांचों सेक्शंस में से मेरे ये 2 सेक्शन बहुत बेस्ट है, तो उनको मैं पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, जिससे मेरा मोटिवेशन आ जाए मेरे अंदर कि हाँ मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं. और ये चीज मैंने मॉक्स में भी की है, और मैंने वहां जब मैं डी-डे के दिन पेपर दे रहा था, तो दैट डे आल्सो आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट माय वेरी सेक्शन फ्रॉम द एनालिटिकल रीजनिंग, एंड this was proven good for me, the strategy which I followed. So आपका जो बेस्ट सेक्शन होना चाहिए, आपको उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आप मोटिवेटेड हो जाएं, और फिर उसके बाद आपको वो सेक्शंस लेके आना चाहिए जो आपको थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कराते हो, क्योंकि आप पहले से ही मोटिवेटेड हो गए हैं और आपका स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि हाँ मेरे से 40 क्वेश्चन है अगर एनालिटिकल में, तो मेरे से 35 प्लस मेरे बन रहे हैं, तो आगे भी आपके बनते चले जाएंगे, जो आपको नहीं भी आता है वो भी बनते चले जाएंगे. ओके ओके, दैट्स ग्रेट. थोड़ा सा एग्जाम्स का जो पेपर पैटर्न था, इट मींस लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, चाहे वो इंग्लिश का हो, लीगल का हो, जीके का या फिर व्हाटएवर, थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, बट थोड़े से ब्रीफ में लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, टाइप ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ, तो जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, स्टूडेंट दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें, थोड़ा सा दे विल गेट आइडिया कि किस टाइप का पेपर था. बिकॉज यू पीपल आर एक्चुअल एस्पिरेंट, हमने एनालिसिस तो दिया ही है, but from your feedback will be more relevant for them. Yes sir. Sir, first of all, paper was on a very easier side, but if you have attempted MHCET maneuver mocks, मैंने maneuver mocks लगाए हुए थे, तो उनका लेवल, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर साइड पे था, और जब मैं MHCET देने गया था तो मुझे थोड़ा सा उसका लेवल easier साइड पे लगा, तो it was a cake walk for me. तो मुझे लगा कि यार ये पेपर तो इजी आ गया है, ये क्वेश्चंस तो मैंने अटेम्प्टेड करे हुए हैं पहले से. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब आपने इतने डिफिकल्ट लेवल प्रिपेयर किए, दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि आपको वो इजी लग रहा है. आपने इजी लेवल ही प्रिपेयर किया होता तो देन यू विल थिंक कि ओके चलो यही लेवल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो फिर डिफिकल्ट हो जाता. हाँ सर, इसीलिए मैं बोलता हूँ सर, जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, मॉक्स देना चाहिए, यू शुड गिव हार्ड मॉक्स. एग्जैक्टली, आपको हार्ड मॉक्स देने चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी हो जाए, और फिर उसके बाद आप जाके इजियर पेपर, चाहे पेपर इजी है चाहे पेपर टफ है, अगर आप टफ मॉक प्रैक्टिस कर लिए तो आप दोनों कर पाएंगे. दैट इज अ वेरी गुड सजेशन. एग्जैक्टली, ये काफी बेटर सजेशन है व्यूअर्स के लिए कि जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अपना लेवल एक ऊपर रखो. जब आप अपना एक लेवल ऊपर रखोगे तो आप उस एग्जामिनर के लेवल से आप ऊपर हो, तो फिर डेफिनेटली आप क्रैक करोगे काफी अच्छे मार्क्स से. आप उस एग्जामिनर के लेवल से आप खुद को ऊपर पे रखोगे तो फिर तो डिफिकल्ट होगा, और रैंक भी एंड मार्क्स भी काफी कम आएंगे. ओके, सो व्हाट अबाउट द मैन्यूवर कंटेंट जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था विद रिस्पेक्ट टू मॉक या फिर जीके या फिर रीजनिंग, हाउ इट्स रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम? Sir, I must say that it is very, very, very relevant for the MHCET, because I attempted all the mocks of maneuver. I attempted around 20 mocks for maneuver MHCET. All 20? All 20, sir. And my highest score in that mock was around 116. I scored highest 1116, and I scored 119 in MHCET actual. So in actual mock test. Plus 3 marks. And my average was around 106 to 1010. So I will give suggestions to you that if you attempt hard mocks, I must say that you will going to be crack that examination with the 10-15 marks of that average mocks. Oh, that's great. It means आप 10 से 15 मार्क्स ज्यादा ही लेके आएंगे जितने आपके एवरेज आ रहे होंगे हार्ड मॉक्स. राइट. इट मींस अगर इस मॉक में आपके 100, 105 एंड 6 आ रहा है तो डेफिनेटली 5
10 marks will be more in actual exams. Yes, yes. ओके तो ये एक बेनिफिट होता है मॉक लिखने का, आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बाउंड के टाइम पीरियड में कितना मार्क्स है, और अच्छे मार्क्स लिखोगे तो डेफिनेटली एक्चुअल एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करोगे और काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। और व्यूअर्स देख भी सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ये बेसिकली मॉक इट मींस फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स मॉक इज कंपल्सरी, एटलीस्ट 10-20 मार्क्स आपको लिखना चाहिए, राइट? Yes, sir. Mocks are very compulsory for the examination. Whichever examination you are going to टाइम attend. मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Yes, sir. Time management and the analysis of the mock is very important, sir. अगर आप mock That is लिख also देते हैं good. और आपके 150 में से अगर 110 मार्क्स आ रहे हैं, आपके जो 40 क्वेश्चंस गलत हैं, आपको उनको पहले चेक करना चाहिए कि वो 40 Wow. क्वेश्चंस कौन से गलत हुए हैं। That is also very good suggestion for other aspirants. So if you are appearing the any mock test, if your question is wrong, so it's very important to analyze them कि कहाँ पे wrong है, क्यों wrong है, and उसको try करो correct करने का उस section को, right? Yes sir, yes sir. So तो आपके पहले तो 40 क्वेश्चंस जो आपके रॉन्ग जा रहे हैं, पहले आप उनको देखिए। फिर आपके जो 110 मार्क्स आए हैं उसमें से आपने कुछ शायद आपने फ्लूक्स भी मारे होंगे, तो आपको वो 110 को भी एक बार रिव्यू करना चाहिए कि आपने कहाँ फ्लूक्स मारे थे और वो आपके सही हो गए। तो एक बार आपको 110 जो आपके आए थे उनको भी रिव्यू करना चाहिए। काफी बेटर सजेशन आप दे रहे हो एस्पिरेंट के लिए जो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वे में अगर मॉक एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली योर स्कोर विल इंक्रीज ग्रेजुअली। और अगर से आप 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर मॉक 20 मॉक तक अपीयर कर लो तो एक्चुअल एग्जाम में कोई आई डोंट थिंक एज पर मी कोई टेंशन लेने की जरूरत होगी। आराम से जाओ, एंजॉय करके सारे सेक्शन को अपीयर करके आओ, क्योंकि 20 मार्क्स अपीयर करते करते ही आप एकदम प्रो हो जाते हो, राइट? उस पैटर्न से एकदम प्रो हो जाते हो। इट मींस 20 टाइम आपको चांस मिल गया एग्जाम को अपीयर करने का, फिर एक्चुअल एग्जाम में तो डेफिनेटली आप बेटर स्कोर करते हो। तो इन शॉर्ट what tips according to you for the student those who are planning for the next year, क्या स्टेप उनको फॉलो करना चाहिए? एटलीस्ट 5 स्टेप कि जो उनके प्रिपरेशंस एंड उनको बेटर स्कोर करने के लिए काफी हेल्पफुल हो। Yes sir. So first of all I would like to give suggestion to the aspirants who are going to give that MHCT exam next year. पहली चीज सर ये है कि आपको, अगर मैं जीके से स्टार्ट करता हूँ, ओके पहला चीज अगर आपको जीके सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको आज से ही जीके स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको स्टैटिक पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने स्टैटिक के लिए लूसेंट फॉलो करी थी और आपकी पीडीएफ फॉलो करी थी। तो लूसेंट आप फॉलो करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, स्टैटिक आपकी स्ट्रॉन्ग होना चालू हो जाएगी। क्योंकि एज वी ऑल नो दैट एमएचसीटी स्टैटिक भी पूछता है और करंट भी पूछता है, दोनों तो क्वेश्चन न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है और उसके साथ साथ आप स्टैटिक के लिए लूसेंट भी पढ़ते रहिए। ओके सेकंड फॉर द एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन, लोग क्या करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, अगर बच्चे क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस करते हैं। एंड वी नो दैट एमएचसीटी हार्डली आस्क 1-2 क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, वो 35 प्लस क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग्स के देता है। तो आपको अपने पजल बेस्ड क्वेश्चंस, उनको मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। Because as you know that basically the crowd which is going to attempt these law examination, they are from basically from they are from the arts background or commerce background, तो उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक होती है और एनालिटिकल रीजनिंग्स भी उनको थोड़ी सी नहीं बनती है। तो एनालिटिकल रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग, क्योंकि वो 40 नंबर का वेटेज आपका रखता है। थर्ड थिंग फॉर द लीगल, लीगल के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। मैंने आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल की क्लासेस भी देखी हुई हैं और उसके साथ साथ मैं पीडीएफ भी कवर करता था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एमएचसीटी जो है बेसिक लॉज ही पूछ लेगा आपसे आर्टिकल 21 की डेफिनेशन ही पूछ लेगा। अब आपको वही पता नहीं होगा, आपने लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए बट एप्टीट्यूड के नहीं किए, तो फिर आपसे वो नहीं बनने वाला है। उसके साथ साथ चौथी चीज मैं देना चाहूंगा आपका मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। लोग मैथमेटिक्स को इग्नोर कर देते हैं और वी ऑल नो दैट मैथमेटिक्स इज ऑफ ओनली 10 मार्क्स, बट वो 10 मार्क्स ही आपको कहाँ लेके जाते हैं। अगर मैं 119 पे हूँ और मेरे मैथमेटिक्स में 0 है तो मैं 129 पे पहुंच जाऊंगा और मैं AIR 1 भी आ सकता हूँ। तो मैथमेटिक्स आपका बहुत बड़ा जंग लेके चला जाता है। तो मतलब 10 मार्क्स को लेस मत समझो, उसको भी पूरा इंपॉर्टेंस देना है। हाँ, मैथमेटिक्स को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और फिफ्थ सेक्शन ऑफ इंग्लिश, और अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका हो ही जाएगा, वोकैबुलरी, RC एंड grammar section. We all know that grammar and vocab is asked in a very good chunk in MHCT examination.
सो vocab को भी आपको साइड नहीं रखना है और ग्रामर को भी साइड नहीं रखना है, आरसी vocab ग्रामर तीनों कवर करते हैं। तो 5 स्टेप में बेसिकली आपने 5 सेक्शंस के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन बता दिए। तो स्टूडेंट दोज हु आर प्लानिंग, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एंड दे कैन मेक देयर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू दैट विथ रिस्पेक्ट टू ऑल सेक्शन। सारे सेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड ऑल सेक्शंस इज इम्पॉर्टेंट, सारे सेक्शन 1 मार्क्स का भी है तो इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। सो that's it. Okay, so thank Udasi to come here and to share your exam strategy and your point of view for the exams and your experience. So best of luck from our end, and whatever the college you are targeting, so definitely you will get it. So काफी hard work किया है आपने. Anything else? Thank you for the Manoeuvre team, sir. Thank you for you too, sir. Thank you, thank you, Udasi. Anything else you want to share? Okay, sir. I am fine. Thank you, sir. Okay. Chalo, bye. Yeah.